ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଓଡ଼ିଆର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାକର ତରଫରୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ, ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଲାବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା କଥା ଉଠେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠେ ଯେ ରସଗୁଣ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ରୀତି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ରୀତି, ନା ଯେଉଁ ରୀତି ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ତାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆଗ ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗ ରୀତିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ରସ ଗୁଣ ରୀତି କଥା ଆମର ପଢ଼ା ହେଇଛି, ରୀତି କଥା ବୈଦରୀବୀ ରୀତି, ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି, ଗୌଡ଼ୀୟ ରୀତି, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ଆମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ରୀତିଯୁଗ କଥା କହୁଛେ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ କହୁଛେ ଆଙ୍କ କଥା କାର ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରିକା ଯିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଭଲ ମନେ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଏବଂ SSB ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା 3 ମାସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି 1999 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ 6 ମାସ ପାଇଁ ମିଳୁଛି 2999 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି 8093073340କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଏତିକି ଦେୟ ଦେଇ। ତାପରେ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ହେଲା ପେପର 1 ୟୁନିଟ୍ 7 ରୀତି ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୀତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଉଭୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବା କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଧାରଣା ଆପଣ ରୀତିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ରୀତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ରୀତିବାଦ କ'ଣ, ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ଆମେ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେଉଁ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ତ୍ରିକ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରୀତିଯୁଗ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ରୀତିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। କେହି ବୁଝିବା ନୁହେଁ ବା କେହି ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା। ଆମେ ରସ ଗୁଣ ଆଉ ରୀତିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୀତିଯୁଗ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଯେଉଁ ରସଗୁଣ ରୀତି କଥା ଆମେ ପୁରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ରସ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଗୁଣ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ରୀତି ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି। ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରାସରିଛି, ତେବେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ, ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅଭିମତ ବା ସଂଜ୍ଞା,
ये संपर्क में आप अभिहित होगा दरकार। प्रथम कथा आम तो रीति जुग कथा रीति साहित्य संपर्क आम मल्टीपल चॉइस कथा को करुचे ताले प्रश्न आसीबो रीति रीतिरात्मा काव्यस्य काव्यर आत्मा रीति ये कथाटी किए कहले भारत वर्षर को विशिष्ट लोक एक कथा कहले जे रीतिर रीतिर आत्मा काव्यस काव्यर आत्मा हूँ रीति जमी काव्य रस वाक्य रसात्मक काव्य बोले आम कहते विश्वनाथ कथा आम पढ़ुले ये कहगला रीतिर आत्मा काव्यस काव्यर रीति हूँ काव्यर आत्मा सदृश ये उक्ति कहार आचार्य बामन आचार्य रुद्रट आचार्य कुंतक आचार्य राजशेखर ये मानक कथा आम पढ़ीचे एवं एमान आलोचना परिसर भितर एमानकर पुस्तक आम अध्ययन करवा पुस्तक अध्ययन करवा अर्थ पुस्तक संपर्क में आम ज्ञात हवा को बही से लिखिं कौन लिखिं कौन कहते अंतत गोटे मोटामोटी धारणा आमर रीतिजुग संपर्क में जो रस गुण रीति कथा आम आलोचना करुचे आसीज लिटरेचर एमती एक पाठ जे से वाटर टाइट कंपार्टमेंट करके पढ़े हेबन धरन वो रीति कथा कहूँ से बामन कथा आसो अभिनव गुप्त कथा आसो ममटं कथा आसो रुद्रटं कथा आसो किए कौन कहते विषय आसो तेणु आपण मैंने टिके विस्तारित दृष्टिभंगी नहीं आपको बुझा चेष्टा करेंगे एवं जमी आप भावुंट यहाँ आम सिलेबस भितर थिला एतिक यही धाड़ी थिला यही धाड़ी पड़ोनी ये सब कथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न थाए एथिरे व्यापक भाव में चर्चा हुए एवं क्रिटिकल एनालिसिस हुए तेणु आम से दिगे को जीवा एवं आलोचना करवा कथाटी आप देखो रीतिरात्मा काव्यस्य काव्यर आत्मा रीति एक कथा किए कहले तामाने रीति काव्यर जे प्रवक्ता से निश्चय कही डेफिनेशन आम कौन कहे रीतिर किए प्रवक्ता ध्वनिवाद अच्छी औचितवाद्य अच्छी वक्रति अच्छी रीति अच्छी रस अच्छी इमती केते कथा आम आलोचना अच्छी तेणु ये रीतिरात्मा काव्यस्य ये उक्ति कहार आचार्य बामन आचार्य रुद्रट आचार्य कुंतक आचार्य राजशेखर मोर कहबार कथा आपण मानकु ये जो सब ना अच्छी आमर मल्टीपल चॉइस रे जो संभाव्य उत्तर भितर ना गुड़िक अच्छी एमाने जड़े जड़े विशिष्ट विद्वान एवं अलंकार शास्त्र को एमाने बहु भाव में समृद्ध करिसेंति तेणु एमानकर काव्य एमाने को मतवादर पृष्ठपोषक एमाने विभिन्न सब कौन सब को मतवाद संपर्क में कहते ये संपर्क में आपण धारणाटी को निश्चित दृढ़ करके रखिए परीक्षार पड़ी पारे तेणु ये जो है ए बी सी डी ए है आचार्य बामन बी रे है आचार्य रुद्रट सी रे है आचार्य कुंतक डी रे है आचार्य राजशेखर ये चारोटी ऑप्शन भितर आपण मान निश्चय प्रस्तुत होते कहतु जदि न कही पारुचन मुझे कहीदेवी ये आचार्य राजशेखर नुहति मु ऑप्शन डी टी को आपण मान आगे काटिदेली आचार्य कुंतक नुहति किंतु आपण मन भीतर धारणा कर कुंतक को मतवादर प्रवक्ता को मतवाद को से प्रतिष्ठा देइछन्ति एक कथा आपण मन रखिबे सेमिति आचार्य राजशेखर संपर्क में आपण जानतु ये कौन को कथा हुए तो आमर ये प्रश्न से ठीक बा तांकर भूमिका न थाई पारे किंतु आम जानिले कौन हम प्रश्न जेपरी प्रकार बुलेकी पकेले आम तांकर उत्तर से प्रश्नटर उत्तर आम दे पारिबा आचार्य रुद्रट नुहति ऑप्शन ये है करेक्ट तमाने आचार्य बामन होचंती जे कि रीतिवादर प्रवक्ता एवं से जो डेफिनेशन टी कहा ये जो उक्ति अच्छी ये हूँ बामनकर बामन कहले रीतिरात्मा काव्यस्य काव्यर आत्मा हूँ रीति यार अर्थ हूँ काव्यर आत्मा रीति हूँ काव्यर आत्मा काव्यस्य अर्थ काव्यर रीतिरात्मा काव्यस्य रीति हूँ काव्यर आत्मा तेणु ऑप्शन ये है करेक्ट द्वितीय प्रश्न देखा रीति संप्रदाय मुख्य प्रवर्तक किए मुख्य प्रवर्तक किए ता माने मुख्य प्रवर्तक अर्थ हूँ भरत मुनि कौन रीति संपर्क में किसी कही ना अच्छी तांकर मत आचार्य ममट कौन कही ना आचार्य बामन अच्छा आचार्य दंडी अच्छा ये माने विभिन्न मतवाद संपर्क में निजर निजस्व मत देइचंती किंतु प्रश्न हूँ मुख्य प्रवर्तक किए माने रीतिवाद को प्रतिष्ठा देई रीतिवाद को रीतिवादर संज्ञा निरूपण करी
ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ମତବାଦକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଛି ଭରତ ମୁନି, ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଭରତ ମୁନି, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ମୁଁ ଅପସନ୍ ଏଟିକୁ କାଟିଦେଲି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ କଥା ସେ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପସନ୍ ସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଇଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ବାମନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ବା ବାମନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟି ସଂଜ୍ଞାଟି ଯେ ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିତରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ମତବାଦର ସେ ହେଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂରଚନା ହେବ ସଂଗଠନା ରୀତି। ଏ ମତଟି ମଧ୍ୟ କାର? ଏଇ ଯେଉଁ ରୀତିବାଦ ହେଲା, ଯାହାର କି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ହେଲେ, ସେଇ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ବା ରୀତିବାଦକୁ ଘେନି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତଟି ଅଛି। ଏଇ ମତବାଦଟି କାର? ଏଇ ମତଟି ବା ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି କାର? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଗଠନା ରୀତି। ଏ ମତଟି କାହାର? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ, ରାଜଶେଖର। ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବାମନଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କଥାଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଲେ ନା ଏ କଥାଟିକୁ କହିଲେ ରାଜଶେଖର କହିନାହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡିକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଅପସନ୍ ସି ଆସିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ବକ୍ରତୀ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏକି ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଗଠନା ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ରୀତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା? ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଅଛି? ପରୀକ୍ଷକ କ'ଣ ଖାଲି କହିଦେବ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ। ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷକ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କାବ୍ୟଟି କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିବେ ସେ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟଟିର ନାଁ କ'ଣ? ତାମାନେ ଯାହାର ଆମେ ଅଭିମତ ପଢ଼ୁଛେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ସିଏ କେଉଁ କବି ବା ସିଏ କେଉଁ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କଥା ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଧ୍ୱନିବାଦ କଥା ପଢ଼ିବା? ଧ୍ୱନି କଥା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ନା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର, ଧ୍ୱନାଲୋକ, କାବ୍ୟାଦର୍ଶ। ଏ ଚାରୋଟି ପୁସ୍ତକ, ଚାରୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏକି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ରସ ଗୁଣ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଜଣେ ତାର ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଥିବେ ବା ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଥିବେ, ସେମିତି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୱନାଲୋକ କାବ୍ୟର ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିବେ, କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ, ଅଳଙ୍କାରର ପୁସ୍ତକ। এই পুস্তক ভিতর সে কହୁଛି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା? ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ରୀତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିମତଟା ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ହେଉଛି ରୀତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କି? ନା, ଅପସନ୍ ଏଟିକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ताकू मध्य आपण जो खातार लिखुंट बा नोट डाउन कर मन रखु तापर काव्य अलंकार कि ना ध्वनालोक कि हाँ काव्यादर्श कि नुहे ताले ऑप्शन सी हूँ करेक्ट साहित्य दर्पण और जो पुस्तक जो अलंकार ग्रंथ साहित्य दर्पण ताकू विश्वनाथ कविराजंकर से हूँ सृष्टि तार ये साहित्य दर्पणर लेखक बा प्रणेता आनंदवर्धन नुहंती काव्यालंकार नुहंती काव्यादर्शर नुहंती से होचंती ध्वनालोक से होचंती ध्वनि मतवादर प्रवर्तक तेणु तांकर ग्रंथटर ना से रखिचंती ध्वनालोक ऑप्शन ध्वन्यालोक ऑप्शन सी टी हला करेक्ट ता परवर्ती प्रश्न को जिबा स्टाइल इज द सिंबल ऑफ अ पर्सनालिटी ये अभिमतटी कहार मु आलोचना कला बेले जितेबाला रीति साहित्य संपर्क प्रश्नर आलोचना मल्टीपल चॉइस आम करुचे से रीति साहित्य प्रश्नर आलोचना आम कला बेले आम कौन करुचे ना आम प्राच्य दर्शन प्राच्य मतवादर जो माने विशिष्ट प्रवक्ता तांको कथा कहूचे एवं जो माने पाश्चात्य साहित्यर से माने मध्य तांको मतवाद को मध्य आम समांतराल भाव में आलोचना करुचे कारण समालोचना साहित्य खाली जे आमर प्राच्य दर्शन प्राच्य विद्यार जो माने होचंती विशिष्ट पंडित से द्वारा समृद्ध होती से कथा नुहे पाश्चात्य साहित्यर बहु विद्वान माने मध्य से संपर्क में निज निजर अभिमत रखिंट एठी गोटे अभिमत आसला जाको आम रीति बोली कहूचे तार जाकू ओडिया आम जाको रीति बोली कहूचे इंग्राजी तार ताको अनुवाद कले आम कहूचे स्टाइल स्टाइल अर्थ होची वे ऑफ एक्सप्रेशन ये जने विशिष्ट लोक जी कहला स्टाइल इज द सिंबल ऑफ पर्सनालिटी ये अभिमतटी कहार स्टाइल इज द सिंबल ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटी होची व्यक्तित्व शैली होची व्यक्तित्वर अभिव्यक्ति ये कथाटी को पाश्चात्य समालोचक कहला कहीं स्टाइल कथाटी आसूची ना रीतिर इंग्राजी शब्दटी होची बा रीति की जदि आम ओडिया रे रीति शब्द को इंग्राजी रे आम अनुवाद करिबा तार शब्दटी हबो स्टाइल किंतु एक कथा मध्य आपन कहि दउची स्टाइल कहले से माने जहा बुझंती आमे जे से कथा न बुझु से कथा नुहे आमे बुझु किंतु तांको बुझिबा आम बुझिबा भितरे केतक पार्थक्य रही सेटा हूँ से पार्थक्य पुणी गोटे जगार से पार्थक्य मध्य केन्द्रीभूत माने अलग अलग अच्छी किंतु गोटे जगार से मिलित होती सभा शेष में कौन से मिलित कौटी ना सी कहते पाश्चात्य समालोचक मानकर कहबार कथा विशेषकर टीएस इलियटंकर कहबार कथा जे जेते प्रकार व्यक्ति अच्छी समस्तर व्यक्तित्वर उद्भासन बा व्यक्तित्वर प्रतीक होची शैली आम गोटे उदाहरण देखा आम किसी एग्जाम्पल देखा रीतिजुग साहित्य आम धनंजय भंज कथा आलोचना करवा आम आलोचना करवा आम रीतिजुग साहित्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कथा दीनकृष्ण कथा आलोचना करवा अभिमन्यु सामंत सिंगार कथा आलोचना करवा लोकनाथ विद्याधर कथा आलोचना करवा एमाने रीतिजुग साहित्य जन जन प्रमुख स्रष्टा एमाने एमिति किछक विशेषत्व बा समस्त एमानकर काव्य एमिति किछि गुण अच्छी जहाँकि समस्तଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ साको आम कहते रीतिजुगर गुण आंक पाखरे अच्छी पाखरे अच्छी पाखरे अच्छी ये तो सत तेणु आम रीतिजुगर आम स्थानित करें किंतु टिके तड़ई कर देखिले देखा से अलंकार अच्छी से विषय वस्तु अच्छी से वर्णना शैली अच्छी से उपादान अच्छी तथापि अभिव्यक्ति रे निश्चय निश्चय टिके अलग पड़ रही आम गोटे गीत शुणीदे सांगे सांगे आम मन भर धारणा होको भंज लिखिथे किंबा जदि पदलालित्य थी आम कहे आपको दीनकृष्ण लिखिथे किंबा आम कहे ये जयदेवंकर रचना एते कांत कोमल पद्यावली किंबा आम कहे आपको लिखिथे किए ना अभिमन्यु सामंत सिंगार कहबार कथा जदि बा गोटे कवि मानकर आभिमुख्य दृष्टिकोण गोटे जुगरे बा सेमानकर जो अभिव्यक्ति को विचार कर आम गोटे जुग भितर रखी था तथापि एक कथा सत्य जे प्रत्येक जुगरे प्रत्येक जुगभुक्त होइथिबा कविंकर जो प्रकाश भंगी किछि मात्रा रे मध्य अन्य मानक ठारू भिन्न
सी कहले जिमिति स्टाइल होची कौन व्यक्तित्वर प्रतीक स्टाइल होची एक्सप्रेशन द वे ऑफ एक्सप्रेशन गोटे कथा को जड़े किमिति कहूची किए सीधा सड़क कहूची किए बंकई कहूची प्रकृति कथा आसला किए से अलंकार देखिए गोटे कथा को अति साधारण कथा को ताकू गोटे विशेष भाव में ताकू बड़ करी कहूची किए बड़ कथाटी को छोट करी कहूची किए ताकू माने सुसुंदर माने सुसज्जित भाषा रे ताकू अभिव्यक्त करुची इमती जदि आम चिंता कर देखा स्टाइल मोटामोटी अर्थ हम जदि आम अलंकार युग बोली रीति युग बोली आम कहूचे स्टाइल मोटामोटी अर्थ हम अभिव्यक्तर शैली माने किए गोटे कथा को किमिति एक्सप्रेशन करुच्ची दि वे ऑफ एक्सप्रेशन होची स्टाइल एटा होची पाश्चात्य साहित्यर विशिष्ट जो अच्छी प्रवक्ता मान अच्छा कवि मान अच्छा कवि समालोचक अच्छा से मानकर एटा मत तांको भितर उठी पड़ा एक कथाटी किए कहला स्टाइल इज द सिंबल ऑफ अ पर्सनालिटी स्टाइल अर्थ रीति सिंबल ऑफ अ पर्सनालिटी अर्थ होची व्यक्तित्व व्यक्तित्व माने स्टाइल बा रीति होची व्यक्तित्वर प्रतीक ये कथाटी किए कहला एटा अरिस्टोटल कथा अच्छी इलियटन कथा अच्छी विश्वनाथ कविराज कथा अच्छी तापर अच्छी डेमोट्रियस कथा अच्छी ऑप्शन डी अच्छी आम ऑप्शन डी टी को काटिदवा विश्वनाथ कविराज कथा कही ना अरिस्टोटल आ इलियट अरिस्टोटल दि पोएटिक्स ग्रंथ अच्छी आ इलियट ये दी जन होती पाश्चात्य समालोचक इंग्लीश थी आम चिंता करवा जे ये दी जन भर जड़े किए किए कही अरिस्टोटल कही ना एक कथा इलियट कहले टीएस इलियट जहाँकर वेस्टलैंड कथा आम पढ़ुचे जी कि जड़े कवि एवं समीक्षक एकाधार कवि एवं समीक्षक तांकर मत है समीक्षा सबु लोक करवा ठीक नुहे किए कर जे कवि हो सी ही समीक्षा कर टीएस इलियट प्रबंध में विभिन्न जगार कहते ट्रेडिशन कथा कहते ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट कथा कहते बहुत कथा समालोचना साहित्य पाश्चात्य समालोचना क्षेत्र को टीएस इलियट सृष्टि सहित तांकर विश्लेषण व व्याख्या अति गुरुत्वपूर्ण तेणु आम ऑप्शन बी टी को करेक्ट कले ता परवर्ती प्रश्न को जावा गुण कहार धर्म कहार धर्म होची गुण गुण कहार धर्म रीतिर धर्म ना रसर धर्म ना ध्वनिर धर्म ना अलंकार धर्म एटी रीति रस ध्वनि अलंकार चारिटा ऑप्शन देला रीति कथा में पढ़ीचे ध्वनि कथा में टिके जानिचे तापर अलंकार कथा तो आम जानिचे रस कथा जानिचे रस की निष्पत्ति हुए से पचार गुण कहार धर्म रीतिर धर्म कि मु ऑप्शन ए टी को काटिदेली नाई रीतिटा हूँ सब बेले लक्ष्य करेंगे ये रीति संपर्क में बहुत आलोचना किछि विद्वान कहते रीति हूँ गोटे अंतरंग एक्सप्रेशन आउ किछि विद्वान मान कहते आम जमी विभिन्न जगह को गला बेले गोटे सभा समिति की गला बेले गोटे सुंदर पोशाक पिंधिक जाऊ गोटे आवरण पकऊ किए चषमाटी पिंधे किए घंटाटी पिंधे किए अलंकार पिंधे किए हाथ में सुनामुदी पिंधे सेमती रीति हूँ गोटे बाह्य उपचार सौंदर्य को वर्धन करने बा निजर अभिव्यक्ति को टिके मनोरम करने ये हूँ गोटे बाह्य उपादान आउ केतक कहते रीति हूँ अंत उपादान तेज से जा हो आम प्रश्न है गुण कहार धर्म गुण कहार धर्म रीतिर धर्म कि ऑप्शन ए के मुझे काटिदेली ऑप्शन बी को है ऑप्शन बी है रस तापर है ध्वनि आपको काटिदेली अलंकार को काटिदेली ताने गुण कार धर्म ना गुण हूँ रसर धर्म रसर धर्म माने गुणरु रस कथा आम चिन्ह पार रसर गुण को चिन्हबानी गुणरु रस को आम चिन्ह पार तेणु गुण है कहार धर्म गुण है रसर धर्म ता परवर्ती प्रश्न को जावा न ही रसावृत्ति कश्चित अर्थ प्रवर्तते इति अर्थात रस व्यतीत अन्य कौन वस्तु आनंददायक हो न पारे यह केउ अलंकार शास्त्र रही और यार स्रष्टा किए न ही रसावृत्ति कश्चित अर्थ प्रवर्तते तार्थ रस व्यतीत अन्य कौन वस्तु आनंददायक हो न पारे यह केउ अलंकार शास्त्र रही और यार स्रष्टा किए गोटे है नाट्य शास्त्र भरत मुनि गोटे है ये आसीगला
नाट्य शास्त्र प्रणेता होउछन्ति भरतमुनि बोली कि आमे जानिले। अच्छा ध्वनालोक कथा आमे पढिचे आनंदवर्धन होउछन्ति ध्वनालोकर पुस्तकर स्रष्टा। काव्यादर्शर स्रष्टा होउछन्ति दंडी। काव्य अलंकार दुईटा अछि गोटे काव्यादर्श गोटे काव्य अलंकार ये उभय थे काव्य काव्य अछि काव्यादर्श हूँ दंडींकर काव्य अलंकार हूँ आचार्य रुद्रटंकर। प्रश्न है नही रसावृते कश्चित अर्थ प्रवर्तते इति अर्थात रस व्यतीत अन्य कौन वस्तु आनंददायक हो न पारे। ये कथाटा किए कहला ये कथाटी कहला भरत मुनि कहले तांकर नाट्य शास्त्र रे। आमे जानिचे भरत मुनि होउछन्ति प्रथम समालोचक। तांकर नाट्य शास्त्र रे से गुण कथा भी आलोचना करिसंती। रस निष्पत्ति संपर्क तांकर मध्य अभिमत अछि। भरत मुनि होउछन्ति प्रथम समालोचक कहले अत्युक्ति हबो नाही। तांकर प्रणीत ग्रंथटी हला नाट्य शास्त्र। से भरत मुनि कहले जे नही रसावृते कश्चित अर्थ प्रवर्तते। रस जदि सृष्टि नहला रस कौन आपण जानिचंती रस होउची चित्त उल्लासकारी एक अनुभूति ताको पार्टी रे प्रकाश करि हबो नाही। मु जदि आपण कहबी गुड़ कौन मु कहबी गुड़ मीठा आपण कहबी मीठा कौन जदि खाइबे ताको जानिबे। सिमती सिमती अनुभूति संपन्न हेले रस कथा रस एमती गोटे को जगार बिक्री होन जे रसगोला रस आम किणी आनिबा से तो अलग जिनस किंतु कौन से काव्य शास्त्र को आलोचना कले पढ़िले किंबा शुणिले हृदय रे जो चित्त उल्लास आनंदित हुए हृदय विस्तारित हो जाए सी हूँ रस। तेणु भरत मुनिकर कथा ये जो रही आमर मल्टीपल चॉइस इथे दीटा कथा आमको मन रखा हम। गोटी है कहार कौन शास्त्र ता संपर्क सूचना में पाइले। भरत मुनि तांकर सृष्टि हूँ नाट्य शास्त्र प्रणेता होउछन्ति भरत मुनि। आमे पाइले ध्वनालोकर स्रष्टा होउछन्ति आनंदवर्धन। आमे मध्य बुझिले काव्यादर्शर स्रष्टा होउछन्ति दंडी। काव्य अलंकार स्रष्टा होउछन्ति आचार्य रुद्रट। ये हूँ गोटे छुरीर दुईटी धार। कवि को माने अलंकारिक को चिन्हले विद्वान को चिन्हले तांकर शास्त्र संपर्क धारणा मध्य हमर आसिला। ऑप्शन ए टी हूँ करेक्ट। मु ऑप्शन बी टी को काटिदेली ऑप्शन सी टी को काटिदेली ऑप्शन डी टी को मध्य काटिदेली। श्रृंगारी चेत कवि काव्यजात रसमय जगत। यही उक्ति किए श्रृंगार रसर महत्व स्वीकार यही उक्ति रे किए श्रृंगार रसर महत्व स्वीकार करिसंति। श्रृंगारी चेत कवि काव्यजात रसमय किए अछंती भरत मुनि भोजराज आचार्य दंडी आचार्य ममठ। ये जो भरत मुनिकर ये कथा नुहे आमे आंकु काटिदेवा। ऑप्शन बी होचंती भोजराज। ये मध्य जने विशिष्ट आलंकारिक एवं आंकर मध्य केतक सब क्षेत्र रे रस निष्पन्न क्षेत्र रे रस गुण रीति ध्वनि वक्रति सब संपर्क में उणाधिक विद्वान माने तांकर अभिमत देइचंती। ये कहले जो रस कथा अच्छी नवरस अच्छी दशम रस अच्छी एकादश रस है गोटे प्रलय रस अच्छी बोलिक एवं बाहर माने रस आमे 8टा रस भरत मुनि कहते 8टा स्थायी भाव पछरे आसला नवम रस तापर आसला दशम रस बात्सल्य रस इमती रसर संख्या मनुष्यर अनुभूति को केन्द्र कर जो रस निष्पन्न होची स्थायी भाव को तार मध्य समालोचक माने क्रमे क्रमे से नूतन गोटे गोटे नुआ जिनस जोग करी चली। एठी प्रश्न है श्रृंगारी चेत कवि काव्यजात रसमय जो रस सब अच्छी किए श्रृंगार रस को महत्व देती किए करुण रस को देती एक रस करुण कही करुण रस सब रस सृष्टि किए शांत रस को गुरुत्व दूसरी इमती विभिन्न रस को गुरुत्व दे से रस ही श्रेष्ठ एक कहते आमर प्राच्य आलंकारिक माने से प्राच्य आलंकारिक मान भितर भरत मुनि भोजराज आचार्य दंडी और आचार्य ममट ये जो चारोटी आमर ऑप्शन अच्छा 4 जन विशिष्ट विद्वान अच्छा किए कहला श्रृंगारी चेत कवि कवि हो जदि हम से निश्चय श्रृंगार रस को वर्णना करिवो एवं श्रृंगार रस हूँ आदि रस एवं यह मनुष्य हृदय रे रस सृष्टि करे। एक श्रृंगारी चेत कवि कवि है मात्रे जदि से कवि होइतिबो से श्रृंगार रस को उपेक्षा करि पारिबो नाही। पुरुष एवं नारीर प्रेम भाव
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ମିଳନ ବା ଯେଉଁ ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ବା ଯୌନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆବେଗ, ये आवेग हूँ श्रृंगार रसर अभिव्यक्तिर माध्यम बा श्रृंगार रस को चिन्हवाक हम ये आवेग भितर एवं आवेग हूँ सहजात कवि है मात्रे सी अन्य क्या उपेक्षा करे अन्य को रस को किंतु आदि रस को उपेक्षा करना श्रृंगारी चेत कवि कवि मात्र ही श्रृंगार रसर होती अनुवर्तक एवं श्रृंगार रसर सी होती प्रकृत में अनुरागी श्रृंगार रस को सी एड़े दे पारे उपेक्षा करें श्रृंगार रस ही रस सृष्टि क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे ये प्रकार मतवादटी कहार भरत मुनिकर नुहे। ऑप्शन ए टी को मु काटिदेली। ऑप्शन डी टी को मु काटिदेली आचार्य ममटंकर नुहे। ऑप्शन सी है आचार्य दंडी तांकर नुहे है भोजराजंकर एटी है मत। ता पाखु जीवा ता परवर्ती प्रश्न को जीवा किए रस को नामकरण सहित 8 भाग में विभक्त करिसेंति। अल्प समय पूर्व आलोचना करुथली स्थायी भाव घिनी रसर संख्या जेतिकटी आमर स्थायी भाव अच्छी रस मध्य आमर सेतिक। भरत मुनि तांकर नाट्य शास्त्र रे 8टी स्थायी भाव कथा कहीदेले 8टी 8 प्रकार रस कथा सी कहीदेले तेणु भरत मुनि हूँ करेक्ट आंसर। एठी किए देला किए रस को नामकरण सहित 8 भाग में विभक्त करिसेंति ममट करिसेंति कि ना सी भोजराज करिसेंति कि नुहे बी रे अच्छी राजशेखर सी करिसेंति कि नुहे करिसेंति भरत मुनि। भरत मुनि 8टी स्थायी भाव कथा नाट्य शास्त्र में उल्लेख करिसेंति जेतिकी स्थायी भाव सेतिक हूँ रस बोली आम आगु पढ़ीचे तेणु सी रस को 8 भाग में विभक्त करिसेंति। जदिओ परवर्ती अवस्था शांत रस आसी बात्सल्य रस आसी सेटा किंतु भरत मुनि तांकर नाट्य शास्त्र में से संपर्क में किछि उल्लेख करिनाहांती। तापर आसला भरत मुनि निर्णीत 8 रस शांत रस मिसाई यह 9 रस किए परिणत कले। ये प्रश्नटी रस संपर्क प्रश्न मु कही रस गुण रीति कथा आलोचना कला बेले आमे जते बेले रीति कथा आलोचना करुचे गुण मतवाद बा गुण कथा किंबा रीति कथा जी तार सब प्रवक्ता से माने पशि आसबे कारण से ये संपर्क में अच्छी कौन अभिव्यक्ति अच्छी। तेणु जदि आपड़ कहे कई जन केतथर लिखते सार एटा पढ़ा कौन एटा सार एसएसबी लेक्चर रे पढ़ा एटा पीजीटी रे पढ़ाबनी। पीजीटी परीक्षा दौथवा लोक मानकर साधारण योग्यता हूँ स्नातकोत्तर श्रेणी एमए लेक्चर पाई एमए एमए रे पढ़ाती एमए कौन ता अर्थ हूँ एमए रे जी पाठ पढ़िबो बा एमए को जी पढ़ेइबो ये उभय मध्य सेइथिबे बहुपाठी लिटरेचर रे इटा नाही परीक्षा रे पढ़िला नाही ये भूगोल नुह कि इतिहास नुहे जे कौन सी ख्रीष्टाब्द कोठी छाड़ीदेला एटा सार नथला आम विषय नथला से विषयटा पढ़िला एते परस्पर सहित संपर्कित रस गुण रीति जे जनक कथा आलोचना कला बेलू अन्य माने पशिबे एवं अन्य मान कथा आलोचना करी जनकर आलोचना को जनकर गोटे कौन निर्दिष्ट विषय को आमे मध्य गुरुत्व दवा ये दृष्टिकोण विचार करुले आपणकर आलोचना आपणकर पाठपढ़ा गोटे विस्तृत पटभूमि रे हबो। आसीबा भरत मुनि निर्णीत 8 रस मिसाई यहाँ 9 रस किए परिणत कले अभिनव गुप्त कि नहीं अभिनव गुप्त कले ना आनंद वर्धन कि नुह राजशेखर कि नुहे। ऑप्शन बी है ममट्ट। ममट्ट जो 8टी रस थिला से गोटे नुआ रस शांत रस को मिसई कले 9टी प्रकार रस से कले नवरस है शांत रस। सिमती परवर्ती अवस्था विश्वनाथ कविराज जे रसवादर प्रवक्ता बोली आम कहू जी कहते वाक्य रसात्मक काव्यं सी जो अच्छी बात्सल्य रस को गुरुत्व दे 10 नंबर रस रूप में प्रतिष्ठा देइछन्ति जहाँकि आपण मैंने आगुरी पढ़ी एवं आलोचना करने प्रसंग में मुझे स्मरण करदेली। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा नवरस किए बात्सल्य रस को मिसाई रसर संख्या 10 को वृद्धि कले। इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा रे पड़ी पारे
8ଟି ରସ 9ଟି ରସ 10ଟି ରସ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଝଙ୍କାରରେ ଦେଖିବେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଶୈଳଜ ରବିଙ୍କର ଗୋଟେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ରସ ରୂପେ କେମିତି ମାନେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ସବୁ ଲିଟରେଚରରେ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ସବୁ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମଫୋନ ରେକର୍ଡକୁ ବଜେଇ ये परीक्षार मध्य आपण उत्तीर्ण हो पारे ना। क्वेश्चन कलाबले केबे हेले कौन सिलेबस अच्छी न अच्छी प्राय अधिकांश प्रोफेसर देखते ना से माने भावती पिला को जानी से प्रश्न कर तेणु आम जदि टी पाठ पढ़ा बेले आलोचना कला बेले टी संप्रसारित दृष्टिभंगी नहीं आम सब कथा को आलोचना करिथिबा आम हटिबा ना। हे नवरसर किए बाच्यर रस को मिसाई रसर संख्या 10 को वृद्धि कले भोजराज नुहंती। ऑप्शन डी रे अछि भोजराज, ऑप्शन सी रे अछि कुंतक, ऑप्शन सी रे अछि खेमेंद्र, बी रे अछि ये हेले विश्वनाथ कविराज। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा। इटी आसला गोटे पढ़िबो ओडिशा ब्रह्मास्त्र पावर पैक अछि वर्तमान 6टा कोर्स पाई मिलुची से 6999 टंका एवं तार भैलिडिटी होची 12 मंथ्स। आ गोटे अच्छी आपणकर त्रिशक्ति पावर पैक एटा मिलुची 3999 टंका। आचार्य वामन केउ मतवादर प्रवर्तक आलोचना हो सारी। पुणी प्रश्नटा आमर आउ थ रिपीट आछि को मतवादर प्रवर्तक ध्वनि की नुहे, रीति की निश्चित, रस नुहे, उचित वाद्य बादर नुहंती। ध्वनि थिला ऑप्शन ए रे, बी रे थिला रीति, सी रे थिला रस, डी रे थिला उचित वाद। मु डी को काटिली, सी को काटिदेली, सी नुहे, बी हला करेक्ट आंसर, ए को काटिदेली, ए बी सी डी भितर बी हला ठीक। प्रश्न थिला आचार्य वामन क्यों मतवादर प्रवर्तक, ये प्रश्न आम आलोचना कर सारिछे। भरत मुनि क्यों संप्रदायर मुख्य प्रवर्तक, क्यों संप्रदायर मुख्य प्रवर्तक प्रश्न को लक्ष्य करिवे। भरत मुनि क्यों संप्रदायर मुख्य प्रवर्तक, अन्य के प्रवर्तक थाई पारंती किंतु मुख्य तांको गुरुत्व दिहाई किए ना से औचित्यवाद ना रीति ना ध्वनि ना रस। सी हेले ऑप्शन ए हला करेक्ट, रस ध्वनि नुहे, रीति नुहे, औचित्यवाद नुहे। आनंदवर्धन क्यों संप्रदायर प्रवर्तक आलोचना सरची आगुरु। आनंदवर्धन होउछन ध्वनि, ऑप्शन बी होउछि करेक्ट ध्वनि। से रसर नुहंती, रीतिर नुहंती, औचित्यवादर नुहंती। औचित्यवादर प्रवर्तक किए एठी आसीगला। औचित्यवाद कौन, औचित अर्थ कौन, आम कहते ये कामटा करवा तुमर उचित है माने यथायथ गोटे शब्द पाखे आउ गोटे शब्दर बसाण बा गोटे अर्थ विन्यास बा अर्थर विश्लेषण बा पद रचना जदि यथार्थता बहन न करे सी पाखरे तार व्यवहार जदि ठीक न हुए यथार्थ न हुए ताहले सेटाको आमे ग्रहण कर सेटा आम हृदय रे कोनोसी प्रभाव पकई पारना। कहते औचित्यवाद, औचित्यवाद्यर औचित्यवादर प्रवर्तक किए भरत मुनि की नाई। आमे भरत मुनि कथा पढ़ी मुख्य प्रवर्तक सी होउछन्ति रसवादर नुहे, खेमेंद्र नुहंती। खेमेंद्र होउछन्ति भूल कहली, खेमेंद्र होउछन्ति करेक्ट आंसर। आनंदवर्धन नुहंती, विश्वनाथ कविराज नुहंती। खेमेंद्र हेले औचित्यवाद। औचित्यवाद अर्थ जोटा जहाँ पाखे जो शब्दटा बसिले बा जो अर्थ जिमिति हेले से सुंदर हम आम कह कथाटा उचित हेलानी। उचित अर्थ कौन माने सेटा अप्रोप्रिएट माने केतक शब्द अच्छी इंग्राजी भाषा रे ताको आमे बुझिला बेलकू से कष्ट ताको आमे बुझुचु ओडिया रे बुझी पारनु। ओडिया रे बुझिला बेलकू इंग्राजी भाषा अप्रोप्रिएट मु कहली उचित औचित अप्रोप्रिएट कौन यथार्थ यथार्थ माने ठीक हवा कथा से जो मतवादटा तार प्रवर्तक होउछन्ते खेमेंद्र। ऑप्शन बी हला करेक्ट। मु ए को काटिदेली, सी को काटिदेली, डी के काटिदेली, खेमेंद्र को करेक्ट कली। एथुर आमे बुझिले जो औचित्यवाद अछि से हमर कोर्सर नाही किंतु आमे कौन करचे
आमे ताको आलोचना करछे काई आलोचना करछे ना आमे रीति कथा आलोचना कला बेले से मध्य चली आछन परीक्षक तो से कथा बुझिबोनी से खेमेंद्र को घिनी गोटे प्रश्न मध्य पचार दे पारिबो वाक्य रसात्मक काव्यम ये अभिमतटी कार वाक्य रसात्मक काव्यम काव्यर वाक्य रसात्मक काव्यम काव्यर आत्मा होची रसात्मक वाक्य वाक्य रसात्मक जदि वाक्य रस निष्पन्न कला सी होची रसात्मक वाक्य होची काव्यर आत्मा यही कथाटी किए कहला वाक्यं रसात्मक काव्यम ये किए कहले ना विश्वनाथ कविराज दंडी भोजराज आनंदवर्धन एक कथा कही नाहंती भोजराज कही नाहंती दंडी कही नाहंती ऑप्शन डी को मु काटिदेली ऑप्शन सी को मध्य मु काटिदेली दंडी की काटिदेली ऑप्शन ए होची करेक्ट एटा होची विश्वनाथ कविराजंकर ये होची अभिमत एवं से कहले वाक्यं रसात्मक काव्यम काव्यर आत्मा होची रस एवं ता जे रसपूर्ण वाक्य वाक्यटी जदि रसपूर्ण होइतिबो ताले से काव्यर आत्मा को योग्य ये कथा कहले विश्वनाथ कविराज क्यों दुई आलंकारिक निज निज ग्रंथर नाम काव्य अलंकार रखिछन्ति क्यों दुई आलंकारिक निज निज ग्रंथर नाम काव्य अलंकार रखिछन्ति एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा रे आसीबारे माने पिला मानक पजल करिबारे पजल अर्थ कोन तांको गोटे द्वंद्व भितर पके देबारे ये गोटे भल सुचतुर प्रश्न कोन ना दुई जन विशिष्ट आलंकारिक अछन्ति विद्वान अछन्ति पंडित अछन्ति तांकर ग्रंथर ना होची समान से दुई जन किए जनकर अलंकार ग्रंथर ना जहा अन्य जनकर अलंकार ग्रंथर नाम मध्य सेया ताहले इमती गोटे प्रश्न दुईटी भाव में प्रश्न पड़ी पारे आर दियोटी उत्तर हम गोटे उत्तर हम धर से पचार क्यों दुई आलंकारिक निज निज ग्रंथर नाम काव्य अलंकार रखिछन्ति भीम और आनंदवर्धन रुद्रट और कुंतक भीम और रुद्रट भोजराज और कुंतक नुहंती भीम हो आनंदवर्धन नुहंती रुद्रट ओ कुंतक नुहंती ये होचंती भीम और रुद्रट आंकर ग्रंथ भीम ये जने आलंकारिक तांकर ग्रंथर ना होची काव्य अलंकार रुद्रट जने आलंकारिक तांकर ग्रंथर नाम होची काव्य अलंकार जदि गोटे प्रश्न थिबो काव्य अलंकार स्रष्टा किए जन जदि भीम को मारिबो ठीक नंबर सब उत्तर पाइबो जदि रुद्रट को पाइबो किंतु प्रश्नकर्ता केबे हेले ये दी जन को दान देई नथिबो कारण तार प्रश्न उद्देश्य भूल हम जनकर ना मल्टीपल चॉइस रखिथो किंतु ए भलिया प्रश्न हो पारिबो क्यों दुई आलंकारिक निज निज ग्रंथर नाम काव्य अलंकार रखिछन्ति आर ग्रंथर नाम भीमहंक ग्रंथर नाम होची काव्य अलंकार रुद्रटंक ग्रंथर नाम होची काव्य अलंकार ताले आमर हला ऑप्शन सी हला आमर करेक्ट उत्तर काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति यह क्यों अलंकारिक क्यों अलंकारिक रचना क्यों अलंकारिक अंक रचना काव्य अलंकार तो गला तापर आसला काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ये किए ये होचंती आचार्य बामन देखिल राजशेखर नुहंती विश्वनाथ कविराज नुहंती पंडित राज जगन्नाथ नुहंती ये हेले आचार्य बामन जो बामन होचंती रीतिवादर प्रतिष्ठा बोली आमे प्रवर्तक प्रतिष्ठा को बोली आमे कहउथले तांकर जो ग्रंथ तांकर जो आलंकारिक ग्रंथ ता ना हला काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ही तेणु ये हेले आचार्य बामन भगवान श्रीराम चरित्र उपजीव्य रचित श्रीराम विलास काव्यर कवि किए ये गुड़िक जो प्रश्न सब थिला आ पूर्वर ये गुड़िक साधारण भाव में रीति साहित्य संपर्कित प्रश्न रीति साहित्य कले कौन रीति जुग कथा आम कहूने जो रीति करे आम जो रसगुण रीति बोली कौचे आम जो वे ऑफ एक्सप्रेशन वैध कौन आम जहाँ कौचे ता संपर्क ये प्रश्न थिला एबे आम रीति साहित्य रीति जुग भितर को आम प्रवेश कले एवं आ परे परे जुग संपर्क आलोचना करवा आम प्राक रीति साहित्य कथा जानिचे धनंजय भंजक पाखरु
रीति जुग आरंभ है बोली आमर समालोचक विद्वान माने मत पोषण करती। धनंजय भंज किए ना सी होचंती घुमुसुर राजवंशर सी होचंती राजा जो वंशरे जन्मग्रहण करथिले उपेंद्र भंज जहाँ को आम कवि सम्राट उपेंद्र भंज बोली कहूँ। से धनंजय भंज सी रीति काव्यर प्रथम रीति कवि हिसाब से मान्यता प्राप्त तांकर मध्य सृष्टि अच्छी जो सृष्टि की परवर्ती कवि विशेष करी कवि सम्राट उपेंद्र भंज तांकर नाती हेबे उपेंद्र भंज। धनंजय भंज तांको पुओ ना होची नीलकंठ भंज। नीलकंठ भंजଙ୍କ पुओ होचंती उपेंद्र भंज। उपेंद्र भंजଙ୍କର वैशिष्ट्यता ଆମେ आलोचना करिबा। मन रखिथांतु ओडिया साहित्य रे जड़े कवि राजा न होई कवि हला आउ कि कथा एमती करना अन्य माने राजा होती कवि होती किंतु से राजपद त्याग कला केवल सारस्वत साधना करने पाई से राजपद त्याग कला सी होती कवि सम्राट उपेंद्र भंज। सी आमर आलोचनार परिसर को आसबे। आम प्रथम आलोचना करुचे धनंजय भंजଙ୍କ उपरे। भगवान श्रीराम चरित्र उपजीव्य रचित श्रीराम विलास एटी विलास कथा अच्छी मन रखु। अध्यापक बंधु माने मन रखिए ये जो श्रीराम विलास ये काव्यर कवि किए दीनकृष्ण दास उपेंद्र भंज धनंजय भंज लोकनाथ विद्याधर। ये जो चारि जन ना रहा ये माने होचंती आमर रीति साहित्य वा रीति जुगर एमाने होचन जड़े जड़े विशेष स्रष्टा। सी किंतु प्रथम प्रश्न देला श्रीराम चरित्र को आधार करी श्रीराम विलास जो काव्यटी ओडिया साहित्य सृष्टि होती तार स्रष्टा किए ता माने श्रीराम विलास होची रीतिजुग साहित्यर प्रथम स्वीकृत ग्रंथ। ता पूर्वर अवश्य प्राक रीतिजुग साहित्य अर्जुन दास अन्य सब कवि मैंने आसछंती से समृद्ध कर हठात तो गोटे जुग एमती बढ़ी बढ़ी की जीवनी जुगर लक्षण जुगर जहाँ लक्षण ता समृद्धि शेष सीमा को स्पर्श करनी क्रमे क्रमे होती से जुगर उद्देश्य था संस्कृत साहित्यर समस्पर्धारे ओडिया भाषा से भाई आलंकारिक काव्य रचना हो पार कि नहीं ये प्रकार गोटे चिंताधारा आम ओडिया कवि मानू बहु भाव विव्रत करता। किए नैषध काव्य जिते सृष्टि कले नैषध काव्य संस्कृत काव्यर गोटे प्रसिद्ध अलंकारिक काव्य सी समस्ते भाविले जे ओडिया भाषा कौन एत पछरे पड़ जाइए कि आमे समस्ते जानचु ओडिया भाषार जन्म होची संस्कृत भाषारू संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश विभिन्न स्तर देकी ओडिया भाषा आसीची किंतु ओडिया भाषा जे संस्कृत भाषा परि उच्च कोटिर आलंकारिक काव्य रचना करा जाई पारिबो ई प्रकार दृष्टिभंगी द्वारा अनुप्रेरित होई सेतेबेले कवि माने कार्य करुले एवं से कवि मान भितर प्रथम आम पाखक आसिले किए ना भगवान श्रीराम चरित्र को उपजीव्य रचित रामविलास काव्यर कवि किए दीनकृष्ण दास उपेंद्र भंज धनंजय भंज लोकनाथ विद्याधर। ये चारि जन जाक होचंती स्रष्टा रीति साहित्यर। मु लोकनाथ विद्याधर को काटी दउची दीनकृष्ण को काटी दउची उपेंद्र भंज को काटी दउची धनंजय भंज होची करेक्ट आंसर। जो धनंजय भंजंकर नाती होचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज। ये श्रीराम विलास काव्यर श्रीराम विलास कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर प्रसिद्ध काव्य नाम होची वैदेहीश विलास। तेणु श्रीराम विलास काव्यर प्रेरणा द्वारा ता द्वारा बहु भाव प्रभावित होइचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज। आपको मध्य आपण मन रखिए। तापर आसला निम्नलिखित क्यों काव्यटी धनंजय भंजंकर नुहे इच्छावती अनंगरेखा वृंदावन विहार मदन मंजरी त्रिलोक सुंदरी अच्छे ना यहाँ इच्छावती तांकर कहार धनंजय भंजंकर अनंगरेखा तांकर मदन मंजरी तांकर आउ वृंदावन विहारटी तांकर नुहे। तामाने इच्छावती अनंगरेखा मदन मंजरी आउ दुईटी काव्य एमती पांचटी काव्य अच्छी ये पांचटी काव्यर स्रष्टा होचंती धनंजय भंजंग बोली आमे जानिले। तेणु ऑप्शन सी टी नुहे ए बी डी ये तीनटा जाक होची कार धनंजय भंजक रचना वृंदावन विहार तांकर नुहे। तेणु यहीटा को मु करेक्ट कली आको सब काटिदेली कौटा नुहे ना यहीटा तांकर नुहे ऑप्शन सी टा तांकर नुहे ऑप्शन सी को मु करेक्ट कली अन्य गुड़ा को काटिदेली। मु कहबार अर्थ जो चारोटी पुस्तक थिला चारोटी पुस्तक भितरु
तीनोटी होची तांकर गोटिए तांकर नुहे धनंजय भंजकर केउ काव्यटी उपेन्द्र भंज को वैदेश विलास लिखा अनुप्रेरित करथिला जो कथाटी मुझे अल्प समय पूर्व कहूली आलोचना करुली धनंजय भंजकर केउ काव्यटी उपेन्द्र भंज को वैदेश विलास लिखा करथिला धनंजय भंजकर काव्य किए ना अनंग रेखा केली अनंग रेखा केली द्रुम चौतीसा इच्छावती आ श्रीराम विलास एठी आम चारोटी काव्य पांचटी काव्य कथा एठी पढ़ुले एठी पांचटी काव्य आ गोटे त्रिपुर सुंदरी बोधे तांकर अच्छी अच्छी मदन मंजरी तांकर अच्छी ताहले ये जो पांचटी काव्य से लिखिते ताधे किए हूँ कौटा प्ररोचित करथिला उपेन्द्र भंज को वैदेश उपेन्द्र भंज वैदेश विलास लिखा इथुर कौ काव्य द्वारा प्रभावित होते अनुप्रेरित होते ये हूँ आम प्रश्न तामाने मु आगुरी भी आलोचना करी आपण मानक जणाई धनंजय भंजक द्वारा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रभावित होती अनुप्रेरित होती आपण मैंने जानी आपण मैंने मनोविज्ञान जदि पढ़ी मनोविज्ञान कौच जे मनुष्यर जो जीन जो वंशगत गुण गोटे लोकर व्यक्तित्व बा तार प्रज्ञा तार पांडित्य बा तार बुद्धि को निर्णय करिबारे शतकड़ा 50 भाग होची जीन रो प्रभाव आउ 50 भाग होची से पढ़ी पाठ सामाजिक संसर्ग किंबा लोक मान सहित तार परिचिति इत्यादि इत्यादि तेणु धनंजय भंजकर रक्त रे जो काव्य माने जो प्रतिभाटा थिला सी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक पर्यंत प्रवाहित ही आसी बोली आमको मानिबा को पड़िबो सी लिखिते श्रीराम विलास उपेन्द्र भंज लिखिं वैदेश विलास आम प्रश्न उत्तर आम पाइले ऑप्शन ए हूँ करेक्ट इच्छावती कड़ी कल्पद्रुम चौतीसा अनंग रेखा ये सबू हूँ धनंजय भंजकर रचना तेणु इच्छावती नुहे केड़ी कल्पद्रुम चौतीसा नुहे अनंग रेखा नुहे श्रीराम विलास काव्यर विषय वस्तु तार नामकरण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को मध्य प्रभावित करिछि जहा फल कि ओडिया साहित्य सृष्टि होइछि वैदेश विलास एवं जो वैदेश विलास होछि उपेन्द्र भंजकर श्रेष्ठ कृति एवं ता संपर्क रे मन रखंतु ता संपर्क रे गोपबंधु को अभिमत काल बलियार आणई संस्कार नव रुचि नव ज्ञान किंतु वैदेश विलास पाइब काले काले उच्च स्थान समाजर परिवर्तन घटुछि जुग रुचिर परिवर्तन होछि लोकंकर आभिमुख्य बदली जाउछि किंतु जेते जहा हेले भी वैदेश विलास रे भंजंकर प्रतिभा जेपरि भाव रे प्रस्फुटित होइछि ताहा जुग जुग धरी सबु साहित्यिक मानकु आमोदित करुथबो ए कथा गोपबंधु भंजंग साहित्य संपर्क रे आलोचना कला बेले कहिसंती आम जीवा अन्य प्रश्न को त्रिपुर मोहिनी काव्यटी कहार रचना से मु पांचटी काव्य कथा कही चारोटी काव्य आम जानी त्रिपुर मोहिनीटी हूँ धनंजय भंजक रचना दीनकृष्ण नुहे ऑप्शन बी रही उपेन्द्र भंज तांकर नुहे यहाँ हूँ धनंजय भंजक रचना लोकनाथ विद्याधर नुहे ता परवर्ती प्रश्न को जीवा धनंजय भंजक रचित निम्नोक्त काव्य मध्यरु केउटी काल्पनिक काव्य नुहे काल्पनिक काव्य नुहे अर्थ कौन ये जो चारोटी अच्छी मदन मंजरी श्रीराम विलास त्रिपुर मोहिनी अनंग रेखा सी कौच एथुर केउटा काल्पनिक काव्य नुहे मु आपन को आलोचना करिछि गोटाए समय रे जतेबेले मध्य जुग साहित्य रीति जुगर आरंभ होइतला सेतेबेले मध्य कवि माने मध्य पुराणरू नायक नायिका निर्वाचन करथले एवं ता संगे संगे मध्य से काल्पनिक काव्य भी रचना करथले निज मन को क्या जड़े नायक क्या नायिका करी से माने शास्त्र रचना करुले रीतिशास्त्र बा रीति जुगर सब काव्य रचना होइछि ये प्रश्नटी आसला चारोटी देला ना कहार ना देला ना धनंजय भंजकर चारोटी ना देला गोटे देला अनंग रेखा गोटे देला त्रिपुर मोहिनी गोटे श्रीराम विलास गोटे मदन मंजरी आ भितर से कहूँ केउटा काल्पनिक काव्य नुहे कौटा अनंग रेखा काल्पनिक काव्य त्रिपुर मोहिनी काल्पनिक काव्य मदन मंजरी काल्पनिक काव्य ये जो श्रीराम विलासटा काल्पनिक काव्य नुहे यहाँ हूँ पौराणिक काव्य तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर मुझे को काटिदेली बी को काटिदेली डी को काटिदेली
कवि रचित केली कल्पद्रुम चौतीसा कहार प्रेमलीला वर्णित केली कल्पद्रुम चौतीसा रीतिजुगर कवि माने काव्य रचना करने सहित चौतीसा रचना कर बहुत दृष्टांत अच्छी सत्य जेपरी भात खाई सारा तृप्तिमूलक कौन भोजन अत्यंत आनंद सुमिष्ट भोजन खाई सारा आम पान खंडे बा लवंग खंडे पार्टी पकेवा भूलु न था सेमती रीतिजुगर कवि माने काव्य रचना करने सहित चौतीसा रचना करने को केवे छाड़ी ना तार्थ चौतीसा रचना न कला पर्यंत तांकर जो सृष्टिर जो इच्छा ताहा पूर्ण हेनी बोली से विश्वास करिसें तेणु आम रीतिजुगर सबू अधिकांश कवि मानकर सब कथा कही हबनी अधिकांश कवि मानकर चौतीसा रचना करिवार दृष्टांत आम पाखरे रही तेणु केली कल्पद्रुम चौतीसा धनंजय भंजकर इथे कहार प्रेमलीला वर्णित होती राम सीता ना राधाकृष्ण ना शिव पार्वती ना लक्ष्मी नारायण ऑप्शन डी को काटिदेली लक्ष्मी नारायण नुहंती शिव पार्वती नुहंती केली कल्पद्रुम चौतीसा राधाकृष्णकर प्रेमलीला वर्णित होईछि राम सीता को काटिदेली ऑप्शन बी हूँ करेक्ट। चौपदी भूषण किए रचना करिसंती चौपदी भूषण दीनकृष्ण धनंजय भंज उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंगार आम ये पर्यंत धनंजय भंज को छाड़ी ना संपर्क आलोचना में करिका चलती तेणु दीनकृष्ण नुहंती धनंजय भंज ऑप्शन बी हूँ करेक्ट उपेन्द्र भंज नुहंती अभिमन्यु सामंत सिंगार नुहंती। रस कल्लोल और रस विनोद काव्य द्वयर रचयिता दीनकृष्ण दास एक व्यक्ति बोली किए मत दियंती यही आम आपण मानक सूचना दिए आपको तो आहरी लंबा करा जाई पारिथांता मु कहि पारिथांती से त्रिपुर सुंदरी काव्य केतोटी छंद से कौ ऋतु वर्णना करा जाइछि इमिति मध्य प्रश्न सब आसी पारे किंतु आमे जदि इमिति सब प्रश्न गोटी गोटी करिका जिबा आमर प्रश्न संख्या बढ़ी जिवो एवं आमर कोर्स सिलेबस सरिबनी किंतु आपन सचेतन करै दउछि जे कोन से काव्य संपर्क रे आलोचना कला बेले से काव्यर किए स्रष्टा काव्यर को नायक नायिका विषय वर्णित होइछि तार प्रथम छंदरे काहांकु आराधना करा जाइछि एवं सेथिरे को अलंकार रही ये विषय आपड़ निजे सतर्क होगी सब पढ़े ये रस कल्लोल और रस विनोद ये दियोटी उच्चकोटीर ग्रंथ ये काव्य द्वारा रचयिता दीनकृष्ण दास एक व्यक्ति बोली किए कहते दीनकृष्ण दास रस कल्लोल पाखु आम आसिले धनंजय भंजों पर दीनकृष्ण दास होती रस कल्लोल काव्यर बा रीतिजुगर विशिष्ट स्रष्टा तांकर प्रसिद्ध काव्यटी हूँ रस कल्लोल रसर कल्लोल नामकरण रे सी निश्चित भाव में अन्य मानू अलग न से तो ना दे था राधाकृष्ण लीला कि गोटे कौन काव्य करते रसर कल्लोल मूल अक्षर तार हूँ सब करे लिखाई सी आउ गोटे बही तांकर अच्छी रस विनोद बहुत समालोचक कहती रस विनोद को जी लिखी रस कल्लोल को सी लिखिनी ओडिया काव्य दीनकृष्ण दास बहु अच्छा एकाधिक नाम दीनकृष्ण दास अच्छा तेणु जड़े कहला किए कहला जी रस कल्लोल लिखी सी रस विनोद लिखी एक कथा को किए कहला आर्तवल्लभ महांती सुरेंद्र महांती श्यामसुंदर राजगुरु आउ हूँ तारिणी चरण रथ ये गवेषक माने द्वंद्व अच्छा गवेषक माने विभिन्न मत देते किसी लोक कहती रस कल्लोल जो दीनकृष्ण दास लिखिं रस विनोद को से दीनकृष्ण लिखि ना से दीनकृष्ण अलग ताने दीनकृष्ण नामधारी कवि ओडिया साहित्य एकाधिक लोक अच्छा कई कई कहते 12-13 जन अच्छा से सब अलग कथा आम खाली बुझा किए कहला जे रस कल्लोल जी लिखी रस विनोद सी लिखी आंक भर किए कहला ना तारिणी चरण रथ कहले ना श्यामसुंदर राजगुरु ऑप्शन सी कहला ना कि सुरेंद्र महांती कहले ना कहले आर्तवल्लभ महांती जी ओडिया भाषा विभाग प्रोफेसर थे रेभेन्सा कॉलेज रे सी मत देले रस कल्लोल को जी लिखी एवं से लिखी रस विनोद को तापर देखा रस कल्लोल कवि दीनकृष्ण और रस विनोदर कवि दीनकृष्ण दुई जन अलग अलग व्यक्ति बोली किए कहला सेठी हला अलग अलग व्यक्ति बोली बोलीटा को एपट सेपट हो जाए बोलो हो जाए बोली एटा एठी एठिक आसले ठीक है जो बोली किए मत दियंती सुरेंद्र महांती
ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବମ୍ବେର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବହି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ, ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଉତ୍ତର ପର୍ବ ଇତିହାସ ଅଛି। କିଏ କହିଲା? ରସକରଳର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଓ ରସ ବିନୋଦର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ। ଆକୁ କହିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ବି କୁ କାଟିଦେଲି, ସି କୁ କାଟିଦେଲି, ଡି କୁ କାଟିଦେଲି। ତାପରକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ କିଏ ଜଣେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି ଭାବରେ ବିବେଚିତ? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମିଶା ଭକ୍ତିର, ସେମାନେ ହେଲେ ପଥିକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମତବାଦର ସମନ୍ୱୟ, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି କିଏ ହେଲେ? ନା ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ। ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ନୁହନ୍ତି, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ଡିରେ ନୁହନ୍ତି, ସିରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ନୁହନ୍ତି, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 12 ଜଣ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଥା କେଉଁ ସମାଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ନୁହନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି, କହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି, ମାନେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି। ଆମେ ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ରସକଲଳରେ। ଅପସନ୍ ଏଟା କରେକ୍ଟ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱରଚିତ କେଉଁ ଚଉତିଶାଟିକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଆବୃତ୍ତି କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରେ ରହିଅଛି? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚଉତିଶା ଭିତରେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚଉତିଶା। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶା, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶା, କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶା, ବଉଳା ଚଉତିଶା ଚଉତିଶା। ଚଉତିଶା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ରମରେ କିମ୍ବା କ ଠାରୁ କ୍ଷୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଠାରୁ ତଳୁ ଉପର କିମ୍ବା ଉପରୁ ତଳ ହେଇକି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର। ମନବୋଧକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶାକୁ କାଟିଦେଲି, ବଉଳା ଚଉତିଶାକୁ କାଟିଦେଲି। ଏଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାକୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଗାନ କରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କୁଷ୍ଠରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅଛି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 30, 28, 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଯାହା ରହିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ଆହୁରି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। କ'ଣ ନା, କେଉଁ କାବ୍ୟ କେତୋଟି ଛନ୍ଦ, କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ହେଇଛି ଆମର ଛାନ୍ଦରେ ହେଇଛି ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆକୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ପଢ଼ିକି ଦେଖି କରିବେ।